Now see, somebody was asking that why we use that, हम मैग्नेटिक यूज क्यों करते हैं, कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, हम डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं करते हैं प्रेशर। प्रॉब्लम यही है कि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनको यूज करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा हो जो फोर्स डायरेक्टली मेजर करेगा, इधर यू नो द फोर्स, या कोई मेजर करेगा, क्योंकि वो कहीं और किसी चैम्बर में है, आपको कुछ ना कुछ वहां लगाना पड़ेगा जो मेजर करेगा। और फोर्स जब आप मेजर करोगे, फोर्स न्यूटन, दैट न्यूटन इज अ लार्ज क्वांटिटी, वो मैंने पहले ही आपको बोला। वी नीड समटाइम्स द प्रेशर वेरिएशंस आर वेरी स्मॉल। तो प्रेशर वेरिएशन जब काफी स्मॉल होगी तो आप डायरेक्टली फोर्स या न्यूटन को मेजर नहीं कर पाएंगे, नीड सम ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर स्केल थोड़ी सी छोटी होगी, जहाँ पर कन्वर्जेंस थोड़ा हमारे पास पता होंगे, हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर्स एंड ऑल दैट। सो इन फर्स्ट अपर केस जो हमने देखा वो कैपेसिटिव वाला था। देयर इज अ चेंज इन द प्लेट दैट डिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस चेंजेस, सो दैट कैपेसिटेंस चेंज जो होगी वो प्रोपोर्शनल होती है दैट प्रेशर वेरिएशन जो इनसाइड होती है, दैट इज द प्रेशर। बिकॉज अगर प्रेशर एक जगह पर आपने रखा है कहीं, तो सम फिनोमिना इज गोइंग ऑन, कोई काम, कोई फिनोमिना, फिजिकल प्रोसेस चल रही है, उस फिजिकल के प्रोसेस के दौरान अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, so you will be able to notice that change. That is the aim for that. And in this case जो आपके पास ये ferromagnetic वाला है, there is a, I was showing you, this is a variable reluctance type of sensing system actually. The diaphragm movement, which this here diaphragm, this diaphragm movement, and it causes change in reluctance of the magnetic path, because जो यहाँ पर coil जा रही है इसके इर्द गिर्द, ये coil जो यहाँ पर है, sorry, यहाँ पर जो coil है, this coil has a current, sorry, it is not a current, so there's a change, actually it is an iron core here, this, so this iron core, it is a ferromagnetic here, so there's a magnetic reluctance because of that variation, because magnetic flux होगा, क्योंकि iron magnetic है, magnetic path, and that will induce the inductance in this coil, so वो inductance फिर detector पे जाके हम measure करते हैं, ये वो chamber है जहाँ पर हम pressure actually measure करते हैं, because sometimes जो pressure होगा, finally those gas particles या molecules, they will enter here somewhere here, and when they enter, then the change is noted. This is called that magnetic reluctance type sensing system actually. This was one of the indirect methods जहाँ पर हम measure करते हैं। सर ये वाला फिर से बोलिए। Okay, see here. तो ये ferromagnet है, it has magnetic flux, there is a iron core here, okay, and there is this coil. When you move this ferromagnetic material, the flux lines will change. जब flux lines change होगी, क्योंकि आगे magnetic core है, that magnetic core will actually behave as a resistor to those magnetic flux lines, क्योंकि वो आगे लगा है, तो आप जितना change करोगे, तो magnetic flux will be changing. Okay? Yes sir. Magnetic flux जब change होगा तो coil में क्या जाएगा? Induced EMF. Induced EMF. That is inductance, which we measure actually at the end. Okay? Yes sir. So these are the two types. I have sent you these pages actually. मैंने आपको send कर दिए हैं, ठीक है? ये मेरे पास book पड़ी है, तो book send नहीं कर पाता हूँ. तो these are different types. आप उनको check it, you can check it yourself. यही है, but इन्होंने थोड़ा सा यहाँ piezoelectric sensor लगाया है, ये देखो यहाँ पर piezoelectric material crystal है, because change से तो piezoelectric material जब move करेगा, there will be some current generated actually. तो please see it. इसको देख लेना. Now I will close this here. We will go back to the whiteboard. So this was a case for high pressure measurements, generally where there is a, and remember that जो ferromagnetic वाला है, the magnetic reluctance type जो है, वो हम तब यूज करते हैं जब pressure variations थोड़ा large होंगी, difference ज्यादा होगी, okay, and in that case जब difference small होती है, तो हम capacitive type वाला यूज करते हैं, capacitance, and it is an aneroid barometer, which is simply a manometer. It's called as manometer. Now the important point is, okay, it is not always necessary it is greater than atmospheric pressure. मैंने पहले भी आपको कहा, we are even close to the atmospheric pressure or we are above the atmospheric pressure. We are not exactly greater than the atmospheric pressure. हम atmospheric pressure से ज्यादा हमेशा नहीं हो सकते हैं, हम कम भी जा सकते हैं, but not at a large scale. एक relative term है, हम डिस्कस करेंगे नीचे, जब लो प्रेशर में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कितना लो हम जा सकते हैं. Okay sir. Now measurement of
एक्चुअली ये पहले जब था, जो सिलेबस पहला था इसका, दिस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का, देयर वाज अ कंसिडरेबल अटेंशन टू दिस वैक्यूम। एक्चुअली वहाँ वैक्यूम गाजेस थी, वैक्यूम चैम्बर्स थे, वैक्यूम पंप्स थे, तो एक काफ़ी डिटेल्ड सेक्शन था। अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा नेट के हिसाब से कंसाइज कर दिया है। यू मे फाइंड सम टर्म्स न्यू, आपको कुछ नई टर्म्स लगेंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी, यू कैन स्टॉप मी, तो हम इनको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। बस कंडीशन इज ओनली दैट, एक ही कंडीशन है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको यू हैव टू टेक सम इंटरेस्ट, आपको एक इंटरेस्ट रखनी है इसमें। सर जितने भी हमने मेथड्स पढ़े ये तो सारे हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक ये गैसेस के लिए नहीं, ये गैसेस के लिए हम पढ़ेंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें आप लिक्विड का भी मेजर कर सकते हो, बिकॉज लिक्विड के प्रेशर वेरी करने से डायफ्राम भी मूव हो जाएगा ना। बिकॉज अगर चैम्बर में आपके पास लिक्विड ही है, गैस नहीं है, तो लिक्विड तो भी चेंज होगा, वो भी डायफ्राम Yes, को मूव sir. कर सकता है। सो इट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट एज वेल। Okay, sir. नाउ सॉलिड्स पे सिंपल ही, अगर आपके पास सॉलिड ऐसा कोई है जिस पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है, इट विल चेंज दैट, इट्स डायमेंशंस विल चेंज, दैट इज पीजोइलेक्ट्रिक, मैकेनिकल स्ट्रेस, Yes, sir. स्ट्रेन। तो इट डिपेंड्स पीजोइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कितना है मटेरियल का, उसी हिसाब से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कभी ज्यादा या कभी कम। दैट इज अ वे दैट हाउ कैन यू मेजर इट, दैट इज वन ऑफ द वेज। तो मेजरमेंट ऑफ लो गैस प्रेशर्स and low gas pressures, actually it is a very important field, research field, and खासकर जब लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई मटेरियल, जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, जेफेट्स, या जो भी सर्किट्स बनते हैं, दो सर्किट्स कैन नॉट बी मेड इन द ओपन एनवायरनमेंट। अगर आपको डायोड क्रिएट बनाना है, सिंथेसाइज करना है केमिकली, एक पी मटेरियल लाना है, एन मटेरियल लाना है, उनको डिफ्यूज करवाना है एक दूसरे में, या उनको ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ, यू कैन नॉट डू इट इन द ओपन एयर, ओपन स्पेस। आप ओपन स्पेस में नहीं कर सकते। कैन यू गेस व्हाई? यस, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेमीकंडक्टर है, आप सेमीकंडक्टर जब आपके पास होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट यू कॉल दैट? दैट इज कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर। Intrinsic. What is intrinsic? When you no impurity. No impurity is added. no impurity. So when you dope it, you said we have added impurity. Dope, yes, sir. Okay, and one atom in 10 to power 11, 10 to power 12 atoms, you dope one atom, and that creates a lot of difference in the conductivity. Conductivity, yes. Okay, so that means अगर आपके पास एक मामूली बाहर का भी एटम किसी मटेरियल में जाएगा, it will change its properties. Yes, sir. तो आपको श्योर करना है पहले कि हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटी बाहर से नहीं आ रही है। आफ्टर आपके पास एक पी मटेरियल है, आपके पास एक एन मटेरियल है, आप पी एन को क्रिएट करना चाहते हो। आफ्टर दैट आपके पास पी, आपको पता है ये पी मेरा पी टाइप जर्मीनियम है, या एन टाइप जर्मीनियम, या पी टाइप सिलिकॉन है, एन टाइप सिलिकॉन है, या एन टाइप जर्मीनियम है। तो आपको ये दोनों मटेरियल से अब इनका डायोड बनाना है। अब ये मटेरियल आपके पास जब आ गए, अब इसके बाद आप नहीं चाहते हो कि कोई और इम्प्योरिटी इसमें आई, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा एंड प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, यू विल नॉट बी एबल टू guess or understand क्या हो गया actually. So we need to make sure कोई भी external impurity नहीं आती है. What is done then? These devices or these instruments, these components, electronic components, उनको जब बनाया जाता है, synthesize किया जाता है, काफी high vacuum में create करते हैं, because vacuum में impurities नहीं होती है, तो they are pure. Pure in the sense, P germanium है तो वो P germanium ही होगा, N silicon है तो वो N type silicon ही होगा। उसमें पी जर्मेनियम के अलावा आपके पास कोई और आर्सेनिक या और कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज चेंज करेगा, एंड हम उसके लिए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उसमें आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, चैम्बर्स लिए जाते हैं, वैक्यूम चैम्बर्स, जहां पर गैस पार्टिकल्स को पहले पूरा बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप्स विच आर कॉल्ड एज वैक्यूम पंप्स। तो अंदर एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, तो क्लीन एनवायरनमेंट में फिर ये डिवाइसेस को सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द, एक आइडिया मैंने आपको दिया कि किस तरह हमें लो गैसेस या लो वैक्यूम्स, लो प्रेशर मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास, फॉर आई विल गिव एक हिंट थोड़ा सा, अगर इफ देयर एग्जिस्ट्स लो प्रेशर, if there exists a low pressure which is of the order of 100 kilopascals, remember that atmospheric pressure is
101.3 किलो पास्कल्स। सो इफ दिस इज द वेरिएशन, अगर आपके पास इतना भी लो होगा, आप जो ऊपर हमने मेथड पढ़े हैं बैरोमीटर, हाई प्रेशर, वो आप मेथड्स यूज कर सकते हो अगर इतना प्रेशर वेरिएशन होगा। बट अगर आपके पास वेरिएशन जो प्रेशर की वेरिएशन है P, जो आप मेजर करना चाहते हो, अगर वो प्रेशर बहुत कम होगा, मच लेस देन एटमॉस्फेरिक, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स यूज करने पड़ेंगे, जो जिनको हम एक्चुअली कहते हैं, तो सेंसर्स आर typically are nowadays they are called, actually not nowadays, they are specially called as vacuum gauges, उनको हम वैक्यूम गाज बोलते हैं। अब वैक्यूम गाज, अब एक वैक्यूम गाज को हर प्रेशर रेंज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने ऊपर देखा, अगर डिफरेंसेस ज्यादा होंगी तो हम फेरोमैग्नेटिक कोर यूज करेंगे, इंडक्टेंस मेथड यूज करेंगे। अगर डिफरेंसेस कम होगी तो हम कैपेसिटेंस भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इनके साथ भी होता है। अगर आपके पास कम प्रेशर की फिर रेंज आती है। रेंज कैसे आती है मैं बताता हूँ। हमारे पास वैक्यूम जो होता है, सो वी विल यूज ए टर्म इंस्टेड ऑफ लो प्रेशर, आई विल यूज टर्म वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की रफली मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, रफली देयर आर 3 कैटेगरीज, देयर आर मोर। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे देखोगे रेंजेस ऑफ द वैक्यूम, तो बहुत सारे लोगों ने इसको डिवाइड किया, बट ब्रॉड 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड। एक है रफ वैक्यूम, that is of the order of 10 to the power minus 3 pascals, and before that I will give you some units actually. यूनिट्स पहले हम देखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये फिर से। यूनिट्स हमारे पास एक आपके पास है 1 पास्कल, ओके, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, I think it is 1 torr is 1 mm, and 1 pascal is 132. Sorry, we have torr, not we have torr, another unit which is mostly used for vacuum. So 1 torr is equal to 133.32 pascals. Okay, and this is actually equal to 1 mm of mercury. ठीक है, so 1 torr and 1 mm of mercury are actually approximated is 0.99 something, but we take it approximately as 1. So this is the unit conversion. अगर आपके पास कहीं torr में दिया है, आपको वैक्यूम फिर पास्कल में कन्वर्ट करना है या मर्करी में लेना है, तो you can convert it. So this is simply the unit conversion. 1 mm of mercury is 133.3 pascals, which is this 32 pascals. Yes. Now we have the ranges of this vacuum. One is called as rough vacuum. It ranges from 10 raised power 0 to 10 raised power minus 3 torr generally. 10 raised power minus 5 पास्कल तक जाएगा ये। 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। एंड नंबर सेकंड इज हाई वैक्यूम। सर ये इनकी कैपेसिटी है मेजर करने की? देखो रेंज होता है एक वैक्यूम का, आप कितना, हाँ देखो गॉज वैक्यूम रेंज में, एक ही गॉज आप हर वैक्यूम रेंज में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो गॉज आप एटमॉस्फेयर प्रेशर के नजदीक इर्द गिर्द यूज कर सकते हो, वो बहुत कम वैक्यूम पे यूज नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशंस होंगे। ये ऐसी ही बात है, अगर आपके पास थोड़ी कर कंप्लीट पॉइंट, चलो गॉजेस में बाद में पढ़ा, थक गए वहीं पढ़ो ना 1 मिनट दिखे सर वाला नहीं आसन क्लास से उस बोर्ड ऐसे सर टाइप कंप्लीट करेंगे फिर बाकी का देखो बात क्या है। आई विल टेल यू वन थिंग, ओके सर, देखो नियाज साहब आपकी 2 क्लासेस लेते, 3 क्लास, उनको आप कभी ऐसे नहीं कहोगे सर हम थक गए, सीधी सी बात है। सर हम सभी को बोलते हैं। मुझे मैंने कभी नहीं देखा वो 2 घंटे क्लास लेते हैं, 3 घंटे क्लास लेते हैं, मैंने कभी नहीं सुना। 2 घंटे की नहीं, मैंने देखा सर 1 hour and some few minutes। यहाँ छोड़ो आप यहाँ की ऑनलाइन की बात, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जब वो क्लास में पढ़ाते थे सर, वहाँ पढ़ाते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, 10 मिनट और दे तो फिर छोड़ देंगे आप, 1:20 पे छोड़ेंगे, फिर नमाज का टाइम है तो छोड़ देंगे फिर। सो हाई वैक्यूम, सो ये रेंज होती है वैक्यूम की। जैसे आपको मैं बताऊंगा, अगर कहीं पर आपको घर में पावर सप्लाई यूज करनी है,
जो आप गीजर के लिए सप्लाई यूज करोगे वो आप एक नॉर्मल बल्ब के लिए यूज नहीं करोगे। अब जो आप एक नॉर्मल बल्ब Yes, जिससे sir. जो आप नॉर्मल बल्ब पे यूज कर सकते हो वायर जिसकी रेजिस्टेंस होगी, वो उस रेजिस्टेंस की वायर आप एक हाई लोड के लिए यूज नहीं कर सकते, गीजर के लिए वो या हीटिंग के लिए, इंडक्शन में कुकर के लिए, उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे। सेम इज द केस विद दिस। आपके पास एक रेंज है वैक्यूम का, रफ वैक्यूम, फिर हाई वैक्यूम है, फिर हमारे पास ये हाई वैक्यूम जाता है -3 से -6 टॉर एंड 3 इज अल्ट्रा हाई UHV। आपने काफी जगह देखो ये टर्म UHV इज अल्ट्रा हाई वैक्यूम एक्चुअली, so it is 10⁻⁻6 to 10⁻⁹ or sometimes 10⁻⁻10 as well। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो 10⁻12 तक भी जाते हैं, बट दिस टिपिकल रेंज, ये टिपिकल रेंज है। तो हर एक रेंज के लिए, जैसे रफ वैक्यूम को, इसको मेजर करने के लिए इसकी अपनी जो गॉज होती है वो अलग डिजाइन की जाती है, इसके लिए जो गॉज होती है वो अलग डिजाइन की जाती है। somebody has audio, थोड़ा सा शोर आ रहा है बैकग्राउंड में, तो प्लीज ऑडियो टर्न ऑफ कर दें। whosoever, so ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम के लिए, इसके लिए अलग से गॉज आती हैं जिनकी सेंसिटिविटी उतनी होगी, क्योंकि जब आप, ये एक चैम्बर है, इसमें गैस पार्टिकल्स है, एक्चुअली दिस माइनस डज रिप्रेजेंट, दैट मींस यू आर ड्रेनिंग आउट दिस पार्टिकल्स। तो आपकी जो गॉज होगी वो इतनी सेंसिटिव होनी चाहिए कि लास्ट का एक बचा पार्टिकल भी वो डिटेक्ट कर पाए, देन यू रीच अप टू दिस रेंज। तो उस गॉज की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो -3 पे मेजर करेगी, ठीक है। तो डिफरेंट गॉज आर देयर एंड दीज आर कैलिब्रेटेड फर्स्ट। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है, अगर आपको गॉज यूज करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गॉज दैट इज कॉल्ड एज पिरानी गॉज, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पिरानी गॉज है। पिरानी गॉज को एक इसका एक लिमिट है, ये कहाँ तक, कितना कम मेजर कर सकती है। तो कम तो ठीक है, कितना मेजर कर पाएगी वो तो इसका लिमिट है जहाँ तक ये मेजर कर सकती है, बट इसको कैलिबर किया जाता है हाई लिमिट तक भी, 10⁴ टॉर तक इसको कैलिबर किया जाता है जनरली। ये जनरल एक वैल्यू है जहाँ तक हर एक गॉज को मतलब सेट किया जाता है कि मैक्सिमम जब लोड जाएगा इस पे 10⁻⁴ टॉर तक ही मेजर कर पाएंगे, तो इस तरह इनको कैलिबर किया जाता है। देयर आर सम गॉज, आई विल गिव यू ये सर गाजेस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. तिला पोरोत है परियोश Sir, इफ्तिसार नसस दिमो तिल क्लास। सारा दिन में क्लास की बैग सारा क्लास देख के। चलो ठीक है, अभी इतना ही फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। Sir, पगा शाप तिल